Aman, what is the meeting password? 6414 वही एक मिनट 64 1482 641482 हाँ Hello. ये पासवर्ड चेंज होता है या सेम रहता है हमेशा? सेम ही रहता है। कभी कभी नहीं, चेंज कि ग्रेविटेशन का हमारा कौन सा एमसीक्यू हो गया था? लेक्चर के लिए एक ही पासवर्ड रहता है ना। एक सेकंड। 45 45 हो गया था ना? 10⁻⁻² आया था आंसर, राइट? हाँ ओके, हाँ सो सेकेंड लेक्चर ऑफ दिस ग्रेविटेशन, हमें खत्म करना है ग्रेविटेशन आज, ठीक है? सो 2 घंटे का लेक्चर है, बता दूं आपको पहले ही स्टार्ट में। चलो 46 वाला करते हैं। सबको याद है ना? रिवीजन सबने लिखा था, क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस मैंने बताए थे। ओके, चलो 46 करो, सॉल्व करो 46। यस 47। सत्यप्रकाश ए कैसे 46 कर रहे हो आप? अच्छा 46, ओके ओके 46। क्या आया? ए आया? कैसे आया सत्यप्रकाश, एक्सप्लेन करो। सर ये जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है ना, √2rg। ओके, स्मॉल जी, राइट? हाँ, तो मतलब एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अपॉन एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ किया तो आया। The radius of the planet is 1/4 that of the radius of the Earth. Okay, and its acceleration due to gravity is double to that of the Earth's acceleration due to gravity. चलो ठीक है. So escape this radius of the planet means rp divided by re. ये क्या दिया? 1/4 दिया. Okay. Acceleration due to gravity of the planet, तो gp divided by ge. ये कितना डबल है? So 2 divided by 1. Okay. How many times the escape, the value of velocity? हाँ, a है. Okay, escape velocity of planet to escape velocity of Earth. So what is the formula? √2gr. Okay, तो planet का ऊपर रहेगा divided by
2gr अर्थ का नीचे रहेगा लाइक दिस. So it will be under root of 1 upon 4 rp divided by re और gp divided by ge है 2 divided by 1. तो क्या आएगा आंसर? This will be root 1 upon root 2. Right now? So कौन सा ऑप्शन है ये? This is option A. Okay. Very good Satya Prakash. Next 47th वाला करो. A space station is at height equal to the radius of the Earth. If VE is the escape velocity on the surface of the Earth, the same on the space station is. C है क्या? Same ही है C ना? आएगा ना? C. हाँ C है. Right? What is the value of escape velocity? It is equal to root 2 times critical velocity. Right now, this equation. It is on the surface of the Earth. Okay, and at height h क्या होता है गणेशन? At height हाँ h सर. VE it is equal to VC. Right now. तो सपोज एट हाइट एच दिस इज व्हाट VE डैश. ओके, तो इसका मतलब आपको क्या चाहिए? VE डैश ही चाहिए. VE डैश मतलब वी वांट VC. तो VC का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन रूट 2 इंटू VE. ओके, सो टाइम्स VE मतलब 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स VE. दैट इज ऑप्शन सी. ओके, दैट इज ऑप्शन सी. नाउ 48. A satellite is revolving in a circular orbit at height h above the surface of the Earth of radius r. The speed of the satellite in its orbit is 1/4 of the escape velocity from the surface of the Earth. Then what is the relation between h and r? Yes. D 7R. कैसे किया बताओ? दोनों का फॉर्मूला लिखना है. VE VC का. equal to root of GM by R plus H. VC का. Okay. VC is equal to under root of GM divided हाँ by r सॉरी, V plus h. equal to root of GM by R plus H. VC का लिखना है या देखो, VE का confusion है लिखना सर. है? हाँ, VC का है root of GM by R plus H. आपको VC का ही लिखना है ना फॉर्मूला? या हाँ VE का VC का. लिखना? ओके, चलो VC का लिखा. उसके बाद सर वहाँ पे गिवन दिया है 4 VC equal to VE. the speed of the satellite in its orbit मतलब VC, right, is हाँ 1 4 4 times 1 1/4 4. तो 1 upon 4 escape escape velocity. velocity from the surface of हाँ, the VE. Okay, हाँ, आगे बोलो. तो तो VC और VC VE equal का to V by 4. हाँ, दोनों फॉर्मूला को इक्वेट किया बस. चलो ठीक है. So this is under root of GM divided by R plus H, right? It is 1 upon 4 और यहाँ पे क्या लिखो? Under root of 2 GM divided by R plus H. बराबर? Yes or no? नहीं. हाँ नहीं सर, R आएगा सिर्फ. प्लस और इधर सिर्फ R आएगा ना? On the नहीं उधर. नहीं राइट साइड में, राइट साइड में. 1/4. V के बराबर. पास में सिर्फ R आएगा. ओके, नेक्स्ट. इसको सॉल्व करना है ना? किया इसको हाँ सॉल्व? सॉल्व. तो इससे रूट हटा दो. हाँ तो GM divided by R plus H it is equal to 1 by 16 into 2 GM divided by R. Okay, so GM will get cancelled. This will be 8. Okay, so R it is equal to 8R is equal to R plus H, right? So H will be equal to 7R. So this will be option D. D अब. Good. Okay, next 49 बताओ. 49. ये मैंने फॉर्मूला दिया था ना आपको, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का. बताओ गणेशन क्या था फॉर्मूला? What was change in potential energy? mg
भूल गया क्या? mgNR था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ आपने बोला था ना पिछले लेक्चर में। mgh upon 1 plus h by r. अरे हाँ 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 mg यार वन इसमें से डिवाइडेड कोई बाय भी नहीं है ना। 1 1 माइनस plus h by r ना? h by r 1 1 माइनस plus 1 प्लस। ओके, प्लस हाँ h by r. so height nr, okay, so h का वैल्यू यू राइट हियर nr, ओके, और सॉल्व करो, देखो क्या आता है। डी आया ऑप्शन। हाँ ऐसे भी है। नहीं एक मिनट रुको। so mg nr हाँ multiplied d है। 1 divided by 1 plus nr divided by r, right? So rr will get cancel, ये n अंदर चला जाएगा, so mgr n divided by 1 plus n, ऐसा। तो ऑप्शन डी ना आया सबका, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट। Yes. क्या हो गया संकेत, आ गया ऑप्शन डी? कुछ डाउट है? ओके, 15th, the energy required to move a body of mass m from an orbit of radius 2r to 3r is, so that energy, it is nothing but total energy na, binding energy, right? So higher energy minus lower energy, ऐसे करो। सर d है। ठीक है, डी आया, gmm डिवाइड बाय हाँ 6। बताओ कैसे किया? बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, हाँ gmm डिवाइडेड बाय r प्लस h, राइट? यस gmm हाँ gmm by r। तो r के जगह में सिर्फ मैंने कॉमन लिया डिवाइडेड बाय r gmm को। प्लस h है या gmm डिवाइडेड बाय 2r प्लस h? यहाँ 2 आएगा ना कनेक्शन, क्या नहीं आएगा? r plus h होगा ना सर? सीधा रेडियस दिया है, सीधा रेडियस दिया है। हाँ हाँ ठीक है, सीधा चलो दैट इज स्मॉल r, बट यहाँ पे 2 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। बाइंडिंग एनर्जी एट हाइट h है ना कनेक्शन। आएगा फिर। ओके सर आपका सर आवाज बहुत कट रहा है। सर आप हेलो हाइट, सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर आपका आवाज बीच में ही कट रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा चलो, MCQ नंबर 50, ओके। Energy required to move a body of mass m from an orbit of radius 2r to 3r is, okay, so binding energy का फॉर्मूला आएगा ना, at height h it is gmm divided by 2r, right? गणेशन, तो हाँ आएगा। हाँ हाँ सर। अभी बताओ क्या आएगा इसका आंसर। तो ये आएगा सर। नहीं ए नहीं सॉरी 12 आ रहा है ना, 12 आ रहा है तो वो ऑप्शन में नहीं है। सर डी आएगा क्या? कैसे किया बताओ। 2r to 3r ना, सो नहीं नहीं एक मिनट। सर ये फॉर्मूला से किया तो अपने को 12 आ आएगा डिनोमिनेटर में। विदाउट 2, हाँ विदाउट 2 किया तो 6 आएगा। तो वो है क्या ऑप्शन में? हाँ हाँ डी हाँ ऑप्शन है में। ना, डी ऑप्शन में 6 है। तो शायद उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी का यूज किया सर। देखता हूँ 2 मिनट रुको। सर हाँ सर Potential ऑर्बिट energy चेंज हो रहा है ना, use किया है, तो दोनों potential। ऑर्बिट का अलग अलग पोटेंशियल होगा ना।
एक ऑर्बिट का कुछ तो हाइट रहेगा, उसकी वजह से उसका पोटेंशियल अलग रहेगा। डोंट यू थिंक बाइंडिंग उसका एनर्जी वेलोसिटी भी चेंज होगा? वेलोसिटी चेंज नहीं होगा ऊपर जाएगा तो, ऑर्बिट चेंज होगा तो। क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द होगा। ऑर्बिट ना, राइट? सो उसके लिए तो बाइंडिंग टोटल एनर्जी होना चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी होना चाहिए। बट आंसर गलत क्यों आ रहा है सर? For first case will be GMM divided by 2 into 2R, GMM divided by 4R. Binding energy for second case. So how much is the change? तो ये तो ऑप्शन में नहीं है चेंज, है ना? GMM by 12R आएगा। 2 by 24 आएगा। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी देखें, पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ 2 नहीं आएगा, ओके? सो 2 नहीं आएगा, सो 2 नहीं आया तो दैट विल बी ऑप्शन डी। सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो, बट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव बॉडी ऑफ मास m आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है। from an orbit of radius 2r to 3r is, ठीक है? सर हाँ 50 वाला डी बाद में, कैसे वापस बताओ एक बार। 50 वाला बाद में करते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी से ही सॉल्व किया, पोटेंशियल एनर्जी से सॉल्व करेंगे तो डी ऑप्शन आएगा, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो डी ऑप्शन आएगा, बट मेरे ख्याल से बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहिए सर, ठीक है? 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, अब 51 और 52 वाला करो जब तक। ओके ऑल ऑफ यू सुन रहे हो? आवाज आ रही है अभी? Yes. ओके। यस एमसीक्यू नंबर 50 में, एमसीक्यू नंबर 50 में एक बार सैटेलाइट लॉन्च हो गया तो कैन वी चेंज इट्स वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी? मींस नो। थियोरेटिकली, अभी अभी अगर थियोरेटिकली बात करें हम तो वी कैन नॉट चेंज इट्स क्रिटिकल वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू द कांसेप्ट्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड, ओके? तो इसको हमको ग्रेविटेशन के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। वट एवर इज द एनर्जी विच इज यूज टू मूव फ्रॉम 2r to 3r, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल के ऊपर अपने को देखना पड़ेगा, ओके? ग्रेविटेशन पोटेंशियल मतलब वी हैव टू चेंज ओनली पोटेंशियल एनर्जी, okay? So energy required to move a body of mass m from an orbit of radius 2r to 3r means we should not take care of kinetic energy. Kinetic energy अपने आप उसका change हो जाएगा according to the radius factor. आपको एनर्जी कितना सप्लाई करना पड़ेगा? इट शुड बी रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी, ओके? क्योंकि आपको ग्रेविटेशन पोटेंशियल को उसको ओवरकम करना पड़ेगा, गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा, इट विल बी जी एम एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, ओके? सो ये वाला फॉर्मूला जब भी आप यूज करोगे, यहाँ पे फर्स्ट केस में 2r, सेकंड केस में 3r रखोगे, देन यू विल गेट 6r, ओके? दैट इज ऑप्शन डी। समझ में आया कि नहीं? राइट? समझ में आया सबको? हाँ सर। हाँ
ओके सो पोटेंशियल एनर्जी आएगा फॉर्मूला ओके 51st किया सॉल्व 51st हाँ क्या है ऑप्शन हाँ बी है ओके बी बी करेक्ट है ना हमने थियरी में भी सॉल्व किया था बताओ कैसे किया है सर वहाँ पे दिया है रेडियस ये हाइट इक्वल टू आर ओके तो तो चेंज जी एम तो जी एम एम बाई 2 आर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन मतलब पहले तो जीरो था ना ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो यूज सीधा करो जी सीधा एम सीधा जी एम जी आर एम जी एच राइट मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर बाय एच ना एच बाय आर एच बाय आर H by R. जी बाय बस इसको इसको अप्लाई करो आप हाइट इट इज इक्वल टू रेडियस तो एच की जगह पे आर लिख दो खत्म बात होगी राइट तो जब भी एच की जगह पे आर लिखोगे सो दिस विल बी एम जी आर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच की जगह पे आर सो आर बाय आर सो दिस वैल्यू विल बी 1 1 प्लस 1 विल बी 2 हाफ एम जी आर ओके ऑप्शन बी राइट और गणेशन आप जैसे आपने किया जी एम एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच तो एच की जगह पे आर लिखोगे तो हाफ आ जाएगा फिर उसके बाद में जी एम इट विल बी इक्वल टू हाँ जी आर स्क्वायर वो वाला फॉर्मूला यूज करके यू कैन गेट दिस राइट दैट कन्वर्जन ऑफ कैपिटल जी इनटू स्मॉल यस सर 52 यस 52 नेक्स्ट ये भी सेम वही फॉर्मूला से कर दिया बी है आ गया सेम यही फॉर्मूले से किया ना एच की जगह पे क्या लिख दिया आपने 3r लिख दिया ओके सो ऑप्शन डी आ जाएगा बी आएगा बी राइट सो दिस विल बी एम जी एच की जगह पे क्या 3r 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3r डिवाइडेड बाय r ओके सो दिस विल बी 3 mgr डिवाइडेड बाय 4 ओके दैट इज ऑप्शन बी राइट नाउ इंफिनिटी कोई है 52 का B हाँ आया 4/3 हाँ 4/3 हाँ ना बराबर हाँ 3 गणेश by तुम बात 4 हुआ ना मोदी से हाँ 3/4 सॉरी हम्म नहीं वो राहुल गांधी का एकदम कट्टर सपोर्टर है। अनिरुद्ध बीजेपी का सपोर्टर है नहीं मैं इंडिया का सपोर्टर हूँ ओ सही बोला सही। नॉटी अन्नी क्रिस्टोफर यस निशिता कोई है हाँ सर बोलो क्या आया 53 का 52 का 53 का ना 52 तो ये सॉल्व हो गया सॉल्व कर दिया था मैंने अच्छा कर दिया आपने 53 नहीं किया 2 किया मैंने क्वेश्चन अभी रिफ्रेश है अच्छा D आप गेट आया में 53 का डी आया करो क्या हाँ a body of बिल्कुल mass सही m is raised to a height 10 r from the surface of the earth where r is the radius of the earth the increase in potential energy is so increase in potential energy again same thing okay increase in potential energy फिर से same formula h की जगह पे क्या लिखोगे आप 10 r लिखोगे so 10 r लिखोगे तो ऑप्शन डी आएगा राइट दिख रहा है आपको ये 3 r जब भी था तो ऊपर 3 आ गया नीचे 4 आ गया जब भी 10 आ रहे तो ऊपर 10 आएगा नीचे 11 आएगा राइट ये तो बहुत सेम आ रहा है सभी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी body of mass m is taken from the earth surface to a height equal to twice the radius 2 times है तो 2 सर by 3 सर आएगा ना हाँ बोलिए सर 53 में भी वही यूज किया ना फॉर्मूला जो 52 में यूज किया था हाँ हाँ इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जब भी आएगा तो आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है उधर GMM दिया है ना इधर हाँ तो कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में कन्वर्जन फैक्टर आपको दिया था ना मैंने जी एम इट इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर राइट ओके ओके हाँ सर 2 टाइम्स आया तो 2/3 ना 2 टाइम्स आया तो 2 by 3 ऑप्शन बी है ना बी 54 का बी आएगा पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर वर्क डन रहेगा जैसे कि 55 में नेक्स्ट वर्क डन है तो भी सेम फॉर्मूला आएगा राइट
shifted to a target equal to the radius of the earth. तो equal है तो ऊपर 1 रहेगा नीचे 2 आएगा, right? So A ऑप्शन आएगा. Yes. अच्छा 1 रहेगा तो ऊपर 1 और नीचे 1 + 1 2. हाँ 2 आ गया, right? सबका हो गया 55 तक. Yes. टोटल कितना है सर? 108. ज्यादा नहीं है. बहुत ज्यादा नहीं. 56 अगेन सेम थिंग, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. अभी देखो क्या लिखा है, R/5 है, ठीक है? तो ध्यान से करो. फॉर्मूला अप्लाई करो. सर तो बी होगा ना मेरे को. सी होगा. देख कभी बी बोल रहा है, फिर कभी सी बोल रहा है. सी सी. सर सी है ना? कैसे आया सी बताओ. मैंने आर वो अपने शॉर्टकट वाला टेक्निक. अपना लॉजिक था ना, ऊपर n आएगा और नीचे n+1. तो ऊपर 1/5, नीचे 1/5 + 1, 6/5. 1/5 + 1 6/5. 6 आएगा. फिर डिनोमिनेटर में 6 आएगा ना, तो मेरे ख्याल से mgh डिवाइडेड बाय 6 आ रहा है आंसर. तो नहीं हाँ सर. सर, इसको सब्स्टिट्यूट नहीं अरे किया है, हाँ, देखो 5 है. वो ऊपर वाले एच को, MGH वाला ये है. सर हाँ वो एच वाला जो एच है उसको नहीं लिया है R/5, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाले को लिया है. अच्छा हाँ हाँ, इसमें h है ना, ABCD में देखो h है. हाँ अच्छा R नहीं है, ठीक है? तो ये जो टर्म है इसको h ही रहने दो, ठीक है? ये वाला टर्म ही h रहने दो. तो दिस विल बी 5/6 mgh. ओके, सो दिस विल बी ऑप्शन सी. ठीक है, इट विल बी ऑप्शन सी. सर डायरेक्ट आर के लिए सब्स्टिट्यूट किया है. किधर है क्या R+h? गणेशन मैंने से समझा. सी ऑप्शन आ गया ना गणेशन, राइट? हाँ हाँ. ओके, नेक्स्ट Yes. 57th. What is the minimum energy required to launch a satellite of mass m from the surface of the planet of mass m and radius r in the circular orbit at an altitude plus 2r? So again the change in potential energy, right? So 2r है ना, so ऊपर 2 नीचे 3 आना चाहिए, है ना? B ऑप्शन, बी आया सर. राइट ना? हाँ Yes. अमन पीछे करेक्ट है B ऑप्शन. Yeah. राइट, ये दिया. A दिया है, A दिया है. ये The minimum energy required to launch a satellite of mass m from the surface of the planet of mass m and radius r in a circular orbit at an altitude of 2r. सर बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला यूज किया तो वो आंसर आता है. बाइंडिंग एनर्जी से 1/5 आएगा, फिर हम लोग को डिफरेंस निकालेंगे ना कि मतलब तो 1 - 1/6 आएगा. हाँ
लेकिन वही तो प्रॉब्लम है ना, कहाँ वो यूज करना है, कहाँ पे ये यूज करना है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ लिखा है मेरे ख्याल से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ जब भी लिखा रहेगा तभी बाइंडिंग एनर्जी यूज बाइंडिंग एनर्जी, ओके ओके। फ्रॉम द सरफेस ऑफ सरफेस, ओके। बोलिए क्या हो गया गणेशन? नहीं सर, तो वो वर्ड हाईलाइट करा था। सो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, सो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ जब भी यूज रहेगा तभी बाइंडिंग एनर्जी यूज करना। ओके, सो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? GMM divided by R, GM/2R plus H. and G binding energy at height h, it will be GMM divided by 2R plus H, right? So what is the minimum energy required to launch a satellite of mass m from the surface of the planet of mass capital M, radius r, and or circular orbit at an altitude of 2R? So ये कितना हो जाएगा? altitude of 2R मतलब h का वैल्यू दिया है 2R, राइट ना? सो ये हो जाएगा GMM divided by 2 into R plus 2R. Okay, so GMM divided by 6R. ठीक है, GMM divided by 6R हो गया. तो what is the minimum energy? That means the change in binding energy. This will be GMM divided by R minus GMM divided by 6R. Okay, so this will be 5 GMM divided by 6R. This is option A. That is option A. ठीक है. Next, a satellite of mass m is orbiting the earth at an height h from its surface. The total energy of the satellite in terms of g0, small g0, the value of acceleration due to gravity on the earth's surface is. Okay, simple है ना या नहीं? What is binding energy at height h? अभी लिखा ना फॉर्मूला, GMM. अच्छा, total energy बोला है, तो total energy and binding energies are negative, right? So total energy will be minus of GMM divided by 2 R plus H, right now. So what is the GM value? It is equal to GR square. So this will be minus GR square small m divided by 2 R plus H, right? क्या ऑप्शन है? C. हाँ, आ गया C ऑप्शन. Okay, yes 15, sir. 59, 59th. If R is the radius of the earth and G is the acceleration due to gravity on the surface of the earth, then binding energy of the satellite of mass m above the surface of the earth is the same thing. C. Binding energy is positive. Okay, so it will be C, C. right? Same thing, same thing. C option. How much energy will be required if a mass of 100 kg escapes from the earth? Okay, R का वैल्यू दिया है, G का वैल्यू दिया है. So escape मतलब binding energy, right? How much energy is required means binding energy. So this is will be GAMM divided by R. Okay, Karan say solve. G का वैल्यू कितना होता था? जी आर स्क्वायर दिया ना, GM के जगह पे GR नहीं दिख स्क्वायर, रहा. हाँ, ब्लैंक हो गया। GM के जगह पे Sir, GR B स्क्वायर. again. So this will be MGR. Okay, MGR. So this will be 100 kg. G का वैल्यू कितना 10 और R का वैल्यू कितना 6.4 into 10 raised to power 6. 6.4. So 6.4 into 10 raised to power 9. 6.4 into 10 raised to 9. Okay, that will be B option. Yes. आया सबको? Yes, sir. निशिता, Yes, sir. Yes, yes, sir.
61st. Consider Earth's rotation. The value of G at Earth surface is maximum at the poles, no? Minimum at the equator. So least at the equator. uh, least Least at the equator. Option B. सबको B option आया? हाँ सर Okay. हाँ सर 62. If the Earth rotates faster than its present speed, the weight of the object it is going to increase or decrease? It should वेट तो डिक्रीज होगा It should decrease. Okay, but poles क्यों decrease होगा? क्योंकि डिक्रीज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा उस पे ज्यादा, राइट ना? G5 तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है पोल्स पे एक्ट नहीं होता, ठीक है? सो डिक्रीज एट द इक्वेटर बट रिमेन अनचेंज एट द पोल्स. सो दैट विल बी ऑप्शन बी, राइट? बी हाँ, ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. 63. सर पीछे हाँ तो हाँ बताओ. नहीं 61 62 चालू है ना नहीं आपने 61 का लीस्ट एट द इक्वेशन हाँ हाँ 61 का डी दिया है सर चेंजेस विद लैटिट्यूड ना? हाँ लीस्ट एट द इक्वेटर. दोनों ही करेक्ट है बी और डी दोनों करेक्ट है सर डिस्कनेक्ट हो गया क्या नहीं कनेक्टेड हूँ डोंट वरी. The value of G at Earth surface is least at the equator changes with latitude. दोनों करेक्ट है ना इसमें तो? और मोर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है गणेशन? अनिरुद्ध. डी होगा ना सर हम्म? ऐसा डी रहेगा क्योंकि क्योंकि कॉस का हाँ अनिरुद्ध बोलो. क्योंकि और ये भी रीजन है हाइट के साथ और डेप्थ के साथ भी लीस्ट होता है ना डेप्थ के साथ में तो जीरो हो जाता है, ठीक है ना? जब भी इस पे आ गया तो सेंटर पे आ गया तो, राइट? तो जीरो कैन बी कंसिडर्ड एज द लीस्ट वैल्यू, राइट? But what is the then what will be the more correct Yes. option? D. Ganeshan. डी Correct ना? Okay. Yes, sir. अनिरुद्ध आप हाँ. एक्सप्लेन करो. अनिरुद्ध आप एक्सप्लेन करो. क्या सर आप एक्सप्लेन करो. डी को जस्टिफाई करो. कैसे आप कहते हो कि डी ऑप्शन करेक्ट है? सर लैटिट्यूड मतलब क्या होता है एंगल ना हाँ एंगल. तो फिर अगर हम लोग उसका फॉर्मूला देखें जी देखो वेट क्या होता है mg होता है और g मतलब g क्या होता है g5 इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर फाई राइट. और हर एक लैटिट्यूड पे फाई का वैल्यू अलग अलग होता है इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि लैटिट्यूड के साथ चेंज होता है वो तो इक्वेटर पे तो जब भी फाई का वैल्यू जीरो हो जाता है तो लीस्ट वैल्यू आता नहीं है तुम्हारे फॉर्मूले के हिसाब से? लीस्ट वैल्यू आ जाता है ना इक्वेटर पे? आता है हाँ तो बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है फिर इसका मतलब? अभी इस पे डिबेटेबल पॉइंट है तो लेकिन अभी मोस्टली करेक्ट मेरे को डी लग रहा है क्योंकि उसका मतलब वो पूरा पॉसिबिलिटी कवर कर रहा है ओके. निशिता आप बताओ. हाँ सर आप बताओ क्या ऑप्शन आना चाहिए, डी या बी? ताहा आप बताओ. शायद डी डी लग रहा है सर चेंजेस विद लैटिट्यूड. ओके. ताहा आप बताओ. सर पता नहीं मुझे तो इक्वेटर ही लग रहा था बी ऑप्शन लीस्ट एट द इक्वेटर. ओके. अदिति. सर मतलब दोनों ही करेक्ट है ना हाँ दोनों करेक्ट है. अदिति. सर डी ना क्योंकि वो जनरलाइज स्टेटमेंट है अच्छा. संकेत. धनश्री. सर डी लग रहा है चेंजेस विद लैटिट्यूड. ओके.
गणेशन कह रहा है कि द लीस्ट वैल्यू इट विल बी जीरो बिकॉज वो डेप्थ पे जीरो हो जाता है, राइट ना। लेकिन गणेशन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कंसिडरिंग द अर्थ रोटेशन। ओके, कंसिडरिंग द अर्थ रोटेशन दैट मीन्स वी शुड कंसिडर रोटेशन फैक्टर, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वी शुड कंसिडर, राइट ना। तो सेंट्रीफ्यूगल मीन्स वी शुड कंसिडर ओनली G5 वाला इक्वेशन, डेप्थ और हाइट वाला इक्वेशन नहीं कंसिडर करना है। क्या हो गया, आवाज कट रही है क्या? समझ में आया गणेशन? डेप्थ और हाइट वाला, डेप्थ और हाइट वाला कंसिडर नहीं करना है। ओके, सो मेरे हिसाब से नहीं सर, आपका आवाज पूरा गणेशन मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपको। सर आपका आवाज नहीं आ रहा हम अभी। भी सुन नहीं आपका पा रहे आवाज आपको। नहीं आ रहा। सर का ही आवाज नहीं आ रहा है। सर कोई इंटरनेट नया इश्यूज। नेट लेना। अच्छा देखो, अरे अभी कोई आएगा भी नहीं लगाने के लिए। अरे लॉकडाउन चल रहा है ना, मैं कोई कंप्लेंट भी नहीं कर सकता नेट स्लो चल रहा है करके, राइट। ओह यस। कंसिडर द अर्थ रोटेशन, तो जब भी अर्थ रोटेशन बात करें हम लोग, तो वी शुड नॉट कंसिडर द डेप्थ एंड हाइट इक्वेशन। ओके, G5 का इक्वेशन ही आना चाहिए सिर्फ, द वैल्यू ऑफ G एट द अर्थ सरफेस इज। ओके, तो जब कोई भी ऐसा कंफ्यूजन आता है बी और डी, जैसे कि आपको दोनों ऑप्शन करेक्ट लग रहे हो, तो आपको वो चूज करना है जो मोस्ट करेक्टेड ऑप्शन है, ठीक है ना। मोस्ट करेक्टेड मतलब जो एक्यूरेट आंसर है, ओके। एक्यूरेट आंसर को टिक करना है, जनरलाइज आंसर को टिक नहीं करना है, जनरलाइज ऑप्शन को टिक नहीं करना है, एक्यूरेट आंसर को टिक करना है, ठीक है ना। तो जनरलाइज ऑप्शन कौन सा है आपका, डी, चेंजेस विद लैटिट्यूड, राइट ना। एंड एक्यूरेट आंसर कौन सा है आपका, लीस्ट एट इक्वेटर। सो आपका ऑप्शन बी रहना चाहिए। स्टार्ट। समझ में आया? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें दो ऑप्शन है, एक में एक्यूरेसी दिया और एक में जनरलाइज दिया, तो जनरलाइज को टिक नहीं करना है, एक्यूरेट वाले को टिक करना है, ठीक है। सो ऑप्शन बी आएगा, लीस्ट एट द इक्वेटर। समझ में आया कि नहीं, राइट? यस सर। ओके, 62. If the earth rotates faster than its present speed, the weight of the object it will decrease at the equator but remain unchanged at the poles because centrifugal force के वजह से change होगा, और centrifugal force poles पे act नहीं होता है। Okay, poles पे centrifugal force zero होता है। 63. Yes. An extremely small and dense neutron star of mass capital M and radius capital R is rotating with angular velocity omega. If an object is placed at an equator, then it will remain stuck to it due to the gravity. If what is the condition? तो ये वाले केस में दो फोर्सेस एक्ट होते हैं ना, जब भी कोई चीज स्पिन होता है, जैसे ये अर्थ स्पिन हो रहा है, तो दो चीजें हैं, एक फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब तक ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, तब तक ऑब्जेक्ट विल रिमेन स्टक ऑन द surface of the planet due to gravity. So what is your condition? Your condition is fg value, fg value should be greater than centrifugal force, fcf. Okay, ये आपका equation है। Okay, the gravitational force should be greater than centrifugal force, ये आपका equation है। Okay, so इसके formulas लिखो and get the value. What is the gravitational force? Gmm divided by r square, right now.
It should be greater than, what is the centrifugal force? ओमेगा में दिया ना, तो m omega square r. Okay, so one of the m will get cancelled. Right? So what will be the value of capital M? It should be greater than omega square r cube divided by g. Omega square r cube divided by g. C option, right? Yes. मिल गया? Yes. Okay, C option. Next, 64 करो, 64 करो. Which of the following statements is not correct for the decrease in the value of acceleration due to gravity? Which of the following is not correct? So acceleration due to gravity, it is decreasing, okay? As we go down from the surface of the earth towards the center, तो जैसे जैसे हम लोग डेप्थ पे जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होता है, तो ये करेक्ट है, अपने को फॉल्स होना चाहिए. As we go up from the surface of the earth, तो अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस, तो ये भी करेक्ट है, तो अपने को रॉन्ग वाला चाहिए आंसर. As we go from equator to poles on the surface of the earth, तो acceleration due to gravity Increase. increases in this case. So आपका ऑप्शन Increases. C ऑप्शन है. ओके, ऑप्शन सी है आपका. ठीक सर है, रोटेशन वेलोसिटी मतलब ओमेगा ना? हाँ ओमेगा, ओमेगा. सो रोटेशन वेलोसिटी मींस ओमेगा. सो जब भी ओमेगा बढ़ेगा तो अगेन जी का वैल्यू कम हो जाएगा, राइट? Yes. 65. The acceleration due to gravity is g at the point distance r from the surface, from the center of the earth of radius capital R. If small r is very very lesser than capital R, then what is this relation Sir, between small g? Yes. हाँ, क्या है 65 का आंसर? sir, D है. डी. क्यों ऐसा लग रहा है? Sir, ये जो G का formula है ना, G equals to gm upon r plus h the whole square at height h, gravity acceleration due to gravity वाला. gm divided by r plus h the whole square, right? सर ये तो डेप्थ हो गया ना, r is less than r, so हाँ, तो डेप्थ के फॉर्मूला में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए आएगा फिर. आएगा. हाँ. So the acceleration due to gravity is g at a point distance r. So distance दिया है, distant वो depth का भी हो सकता है, height का भी हो सकता है, तो वहां पे specify किया है that r it is lesser than the radius of the earth, right? If r it is lesser than the radius of the earth, तो वो वाला distance what, तो gd का फॉर्मूला देखो, gd it is equal to g into 1 minus d divided by r, right? Yes or no? Yes. यस सर. Yes, sir. नहीं, सर डायरेक्ट वो ये ले लो ना, ये वाला वो फॉर्मूला दूसरा वाला था ना, ये देखो, 4/3 पाई आर रो जी. g it is equal to, ये फॉर्मूला देखो, g it is equal to gm divided by small r square, right? ये r plus h है ना, r plus h, अभी हमारा डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r है, ठीक है, तो स्मॉल r हाँ भाई. कंसीडर करते हैं, ठीक है. और मास को हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी सपोज. सो दिस विल बी g इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या रहेगा, 4/3 पाई r क्यूब. अभी वो उतना ही रहेगा, राइट? इफ सपोज दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, the distance it is what, small r, so we will consider small earth, okay, जिसका radius है small r, so this will be r cube divided by r square. Square and cube will get cancelled, तो क्या आएगा, g rho 4/3 pi r. So this is what g, so what is the relation between g and r? G it is directly proportional to small r. Okay, that is option A.
ठीक है, Yes. ऑप्शन ए। Yes, sir. तो अगेन बाय कंसिडरिंग दिस फॉर्मूला g इट इज इक्वल टू 4/3 g रो पाई r, आप सेकंड वाला कर सकते हो, सेकंड वाला। नेक्स्ट 66, if the density of the earth is doubled keeping its radius constant, then acceleration due to gravity will be, so density double हो गया, g it is directly proportional to density, right? Rest all the things are constant. 19.6 ए है। तो A. 19 A आएगा। 9.8 से डबल हो जाएगा, 19.6 ऑप्शन है। सर हम लोग डेंसिटी को कब अकाउंट में लेते हैं, मतलब ऐसा क्या दिखेगा क्वेश्चन में कि हम लोग डेंसिटी यूज कर सकते हैं? Depth, no? नहीं, मैं मतलब इन जनरल। जब भी बस जब भी रेडियस का रिलेशन पूछेंगे, राइट, रेडियस का रिलेशन पूछेंगे, ठीक है, तो वी शुड थिंक अबाउट डेंसिटी। क्यों? क्योंकि मास में भी रेडियस छुपा रहता है, राइट ना। जैसे मास को अगर हम कन्वर्ट करेंगे, सो दिस विल बी वॉल्यूम। मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, तो उसमें एक रेडियस है, राइट। सो व्हेनेवर देयर इज अ रिलेशन बिटवीन रेडियस, देन वी शुड कंसीडर डेंसिटी फैक्टर, ठीक है। ओके सर। Okay, next is 67. The depth d at which the value of acceleration due to gravity becomes 1/n times the value on the surface of the earth is, okay. So depth वाला formula you can apply depth formula. C है। C है सर। C आया, हाँ depth वाला formula यूज किया। हाँ। हाँ सर। सबका आया या करके बताओ। निशिता आ गया? नहीं सर, कर रही हूँ। ताहा आया क्या 67 वाला? सर कर रही हूँ। करो करो। C आ रहा। हाँ सर, सी है। C है। ओके ओके, 68 करो जिनका हो गया। ताहा आ गया 67 का? सर सी है क्या? सी आ रहा है, आपका आ गया क्या? हाँ, लग तो वही रहा है। निशिता आ गया? शायद से सी रहेगा, शायद से क्यों, कॉन्फिडेंट क्यों नहीं बोल रहे तुम लोग? लग रहा है ऐसे। GD it is equal to G into 1 minus D divided माइनस by डी R. बाय आर। If the depth D of the acceleration due to gravity becomes 1 times the value on the surface of the earth, तो GD का वैल्यू दिया है G divided by N, ओके। तो this got G, इसको ये तो सिंपल है, आपको D फाइंड करना है इसमें, ठीक है। So what will be D by R? 1 minus 1 by N, ऐसा, right? So this will be N minus 1 divided by N. D it is equal to R into N minus 1 divided by N, कितना सिंपल है ये। सर एक्चुअली वो ऑप्शन डी में आर स्क्वायर था, वो बहुत क्लोज था ना उससे,
तो मुझे लगा मैं कुछ तो रॉन्ग कर रही हूँ। नहीं, इसमें क्लोज फैक्टर देखना ही क्यों है, ये तो बहुत सिंपल है ना कैलकुलेशन। सर हाँ 68 आ गया। 68 में ना आपने जो रिलेशनल फॉर्मूला सिखाया था ना लास्ट में, चलो GH इक्वल टू G इंटू 1 माइनस 2H बाय R, G इंटू वो फॉर्मूला, 2H डिवाइडेड बाय R। ओके हाँ ये वाला फॉर्मूला में आंसर गलत आ रहा है, ओके 3/8 आ रहा है जो है ही नहीं हाँ ऑप्शन में। तो ये फॉर्मूला यूज करो, GH इट इज इक्वल टू G इंटू R डिवाइडेड बाय R प्लस H द होल स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूले में मैंने आपसे कहा था ना कि जब भी परसेंटेज में दिया रहेगा या फिर ऐसे बोला रहेगा दैट H इज वेरी वेरी लेसर देन द वैल्यू ऑफ R, तभी ये फॉर्मूला यूज करना है। बट ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है, तो ज्यादातर यही फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। ओके, So G by 4 G R divided by R plus दोनों इक्वल, H. So R divided by R plus H will be ये equal to ऑप्शन 1 by 2. So what we need is H. So R plus H into 2R, right? R इक्वल टू H। R is equal to H. Option A. यही है ना ऑप्शन। हाँ 69 वाला तो इजी है, 69 वाला तो हमने थियरी में भी सॉल्व किया था। तो जी डी एंड जी एच आर सेम, तो जब भी जी डी एंड जी एच आर सेम डी तो है। D 2H will be ऑप्शन, equal to D, right? 2H will be equal to D. So option D is correct. Right? 70. The acceleration due to gravity at height 1 kilometer above the earth is the same at the depth D below the earth. 2 किलोमीटर ना। Again, same thing, na? हाँ D is equal to 2H, okay? So height दिया 1 kilometer, so D will be equal to 2 kilometer. So option D is correct again, right? The value of acceleration due to gravity at depth of this much is how much? Calculate करो 71. GD it is equal to G into 1 minus तो G का वैल्यू 10 पकड़ने आ गई 9.8। 10 पकड़ो, देखो ABCD ऑप्शन दूर दूर है ना, सो 10 आएगा। अब दो ऑप्शन तो निकल गए ना इसमें से, राइट? बी और डी ऑप्शन चला गया। सी सर। ओके सी आया ना, 7.35। 7.35 ऑप्शन सी। सो 10 इंटू 1 माइनस 16,000 किलोमीटर और ये 6400 किलोमीटर होता है। इसको सॉल्व करो, विल गेट द आंसर। It will be approximately 7.35. नेक्स्ट आ गया 71 सबका। हाँ सर। Okay, 72. The value of acceleration due to gravity G at a point 5 kilometer above the Earth's surface and 5 kilometer below the Earth's surface are. सर आंसर ए आया है, बट कंफ्यूजन यही था कि हम लोग ने पढ़ते समय देखा कि H इक्वल टू 2D, सॉरी D इक्वल टू 2H ना, उसके सबसे रिलेशन मैच नहीं हो रहा इधर। तो लेकिन ये तो है ना, डिफरेंट है ना, सेम थोड़ी है। अच्छा हाँ पहले से डिफाइंड है, ओके। हाँ आंसर ए है। ए। इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं ना, सीधा दिख रहा है ए ऑप्शन आएगा, राइट? क्योंकि नेक्स्ट वाला केस देखो क्या लिखा है, 0 0, तो 0 0 तो नहीं होगा, थोड़ा तो कम होगा, राइट? सो और दोनों सेम भी नहीं रहेगा बिकॉज 2H इज इक्वल टू डी नहीं दिया है, ठीक है? तो ऑप्शन ए रहेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट 72 में। 73
A body is raised to a height nr from the surface of the earth of radius capital R. The ratio of acceleration due to gravity on the surface to that of the height will be. सिंपल है ना, ये करो. अनिरुद्ध का सी ऑप्शन आया. हाँ सर सी है. आ गया सबका सी ऑप्शन. Yes, sir. गुड. हाँ सी. 74. The diameter of two planets are in the ratio 4 is to कितना है वो? अमन कितना है वो? 4:1. 4 is to 4:1. okay, 4 is to 1. हाँ. Their mean densities. So rho 1 divided by rho 2. 1:2. Okay. Hmm. आगे क्या लिखा है? Their acceleration due to gravity on the planet will be in the ratio. So diameter ratio and radius ratios are same, right? So हमने ये देखा था ना ये formula. Yes. G it is equal to 4 by 3 capital G rho pi capital R. Yes or no? सी है. Solve करो इसे. आ गया आंसर. So what will be G1 divided by G2? Rho 1 by rho 2 into R1 by R2. 1 by 2, right? P. A ना. सर ये कैसे? ए नहीं आएगा. सी है ना सर. सी सी है. है. C रहेगा. सॉरी सी. एक मिनट. अच्छा 4 by R1 1 upon by R2 4 is 4 to by 1 है. 4 is to 1 into 1 by हाँ. okay okay okay. तो 1:2. तो 2 is to 1. So option C option. Okay. C option. Next, the ratio of acceleration due to gravity at a height 3r above the Earth's surface to acceleration due to gravity on the surface of the Earth is. 4 4s are 16, right? So क्या आएगा आंसर? B आएगा. हम्म. 75 आ गया गणेशन. कर रहा हूँ सर. हाँ करो करो. सेंड किया है सर. ये 75 का आंसर बी है. सत्य प्रकाश का भी बी ऑप्शन आया है. हाँ 1 by 16. प्राची आ रहा है क्या 75 का? देख रही हूँ सर. सर 76 में ये वही ग्राफ है ना जो अपना नोटबुक में था, आपने बनाया था. वही ग्राफ है, वही ग्राफ. तो बी है ना फिर. बी है. बी. गुड. विनीत आया क्या 75 का आंसर?
75 सिंपल है. GH it is equal to GM divided by R plus H the whole square, and G it is equal to GM divided by R square, right? So what will be, क्या पूछा है? The ratio of acceleration due to gravity at height h to the acceleration due to gravity on the surface, GH divided by G, क्या रहेगा? R square divided by R plus H the whole square. Okay, so वहाँ पे लिखा है height it is equal to 3R, so R square divided by R plus 3R the whole square, R square divided by 4R the whole square, मतलब 16R square, तो R square cancel, 1/16 आएगा, B ऑप्शन. ओके, 75 का B ऑप्शन. 76 का तो हमने देखा था कि ऑप्शन बी रहेगा, क्योंकि जीडी के लिए वो क्या रहता था, स्ट्रेट लाइन रहता था, राइट? एंड उसके बाद में इट वाज एक्सपोनेंशियली, इट वाज डिक्रीजिंग. ओके, it should be on a straight line, and after that it should be exponentially decreasing, and it should not touch the x-axis. Okay, so x-axis को वो कभी टच करता है एट हाइट इट इज इक्वल टू इंफिनिटी, राइट? सो वो ग्राफ में कभी प्लॉट नहीं होगा, तो ऑप्शन बी आएगा, राइट? द ग्राफ शुड नॉट टच द x-axis. ऑप्शन बी. 77. Infinity is the सर आ host. गए. Sir is back. ए मिनी बाइट्स. 76 का आ गया सबको? ऑप्शन बी. हाँ जी. हाँ सर. 77 का क्या रहेगा? Starting from the center of the earth having radius r, the variation of g, acceleration due to gravity will is shown as starting from the center of the earth. Again the same graph, ना? क्या रहेगा C. option? Option C. Good. C. 78. The value of acceleration due to gravity at height equal to the radius of the earth is how much? Height equal to the radius of the earth. कितना percentage? 1/4 आ जाएगा ना? हाँ, So 25%. 25%. 25. 25%. आया सबको 25%? सर हाइट इक्वल टू रेडियस मतलब टोटल डिस्टेंस जो है सेंटर से लेकर 2r होगा ना? ये देखो, स्मॉल r का वैल्यू 2 कैपिटल R होगा ना? GH it is equal to GM divided by R plus H, right? The whole square. So H it is equal to what? R. So GM divided by 2R the whole square. So 1/4 GM divided by R square. GM divided by R square किसका वैल्यू होता है? G का. तो GH it is equal to 1/4 times G. Okay. So कितना 0.25. percentage? 25% of, 25. right? 25% of the value on the earth surface. B option. So 78 का B option. Next. 79th. The time period of second pendulum on a planet whose mass and diameter are twice that of the earth will be. तो सेकंड पेंडुलम, तो ये तो कौन सा चैप्टर का हो गया? ऑसिलेशन का, राइट? तो याद करो फॉर्मूला, बताओ. T equal to 1/2 pi root of L by G ना? हाँ, so it was depending on the value of G. Okay, अभी ग्रेविटेशन में आ गया ना, so it will be depending on the value of G. Reach हो गया. So T it is equal to 2 pi under root of L by G. So all the things are constant. T will be inversely proportional to root of G. Okay. अभी आप find करो कि what will be the acceleration due to gravity on that planet G पे. It is what GMP divided by RP square, right? So mass and diameter both are twice. So what will be GP divided by GE? G into mass is twice, so 2 times ME, right now? तो M cancel हो जाएगा. RP square,
सो ये भी ट्वाइस है तो 4 आएगा. So this will be 1 by 2, right? Now 1 by 2. So GP, it is equal to GE divided by 2. What will be TP divided by TE? It is under root of GE divided by GP. Okay. So this will be under root of GP का value अपना GE divided by 2. So GE will get cancelled. It will be root 2. So TP will be equal to TE into root 2. TE कितना था? 2 seconds ना? 2 seconds. 2 root 2. Option A. Option A. समझ में आ रहा है? हाँ सर. समझ में आ रहा है? फिर से समझाओ. समझा. गुड. बार लिख लो सॉल्यूशन. लिखना है तो नेक्स्ट करना है तो नेक्स्ट करेंगे. विनीत सूर्यवंशी आ गया तो चैट भी नहीं कर रहा है ना आंसर दे रहा है. समझ जाओ सर आप. हम तो समझदार है इसके लिए बार बार सबको. अच्छा अच्छा चलो थम्स अप बता रहे हैं. चलो ठीक है कोई नहीं. माइक भी खराब है, वीडियो भी खराब है, मोबाइल भी खराब है, तो दिमाग ही खराब है बे. तेजस आर यू देयर? 2.5 आया सर. D. ओके. तो 80 का कितना है? 2.5. अच्छा. हाँ 80. D. Calculate angular velocity of Earth so that acceleration due to gravity at 60-degree latitude becomes 0. Okay. The radius of the Earth is given. The acceleration due to gravity at the pole suppose 10 है. Okay. And cos 60 का वैल्यू भी दिया है. हाफ होता है 0.5. बताओ गणेशन कैसे किया? सर G5 डायरेक्ट फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया. G5 इक्वल टू G माइनस G ओमेगा ओमेगा स्क्वायर R cos स्क्वायर फाइव, राइट? cos. हाँ cos. सो क्या लिखा आपने यहाँ पे? 0 लिख दिया. G60 0. कितना होना चाहिए? 0. तो 0 इट इज इक्वल टू 10. 10 माइनस ओमेगा का वैल्यू फाइंड करना है. R का वैल्यू दिया है यहाँ पे 6400. किलोमीटर मतलब 10⁻³ एंड दिस cos स्क्वायर फाइव मतलब 1 1 by by 2 का स्क्वायर 1 by होल स्क्वायर. 4. ओके 1 by 4. बताओ फिर कैसे किया आगे? बस इसको सॉल्व किया, देन यू विल गेट द आंसर. डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन. हाँ. So this will be 4 ones are, this will be 16. Okay. So omega square multiplied by 16 into 10 raised to power 5 is equal to 10. So ये हो जाएगा 10 raised to power 4 1. So omega square will be equal to 1 divided by 16 into 10 raised to power 4. तो square root लेंगे, so it will be omega will be equal to 1 by 4 1 by 4 into 10 raised to 2 raised to power minus 2. Okay, 1 by minus 2 4 0.25. 0.2. 2.5 लोगे तो 10 raised to power minus 3 आएगा. ऑप्शन डी. Yes. ऑप्शन डी. So miscellaneous 81. If the mass of the sun were 10 times smaller and universal gravitation constant were 10 times larger in magnitude, then which of the following is not correct? So नीट का है तो धनश्री जी आंसर देंगी. धनश्री एंड दीदी. D. G on the earth will not change. हाँ. Universal gravitation constant change हो रहा है ना 10 times. सर 10 10 कैंसिल ना.
G it is equal to gm divided by r square, right? तो 10 सर कैंसिल। बट सन के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, ये तो मास ऑफ द अर्थ है, इट इज नॉट मास ऑफ द सन गणेशन। हाँ तो अगर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो जी भी चेंज होगा। जी विल इंक्रीज ना। हाँ नहीं सर, फर्क पड़ेगा ना। चेंज होगा ना बट सन अर्थ को अट्रैक्ट करता है ना, हाँ। इनके बीच वाला ग्रेविटेशन फोर्स चेंज होने वाला है, तो अर्थ का भी चेंज होगा। Now you tell me the value of small g. देखो कैपिटल एफ जी जो आप कह रहे हो ना, एक्सेलरेशन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड द अर्थ, सपोज दिस इज व्हाट जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ओके, स्मॉल आर स्क्वायर। सो जी हो रहा है 10 टाइम्स एंड मास ऑफ द सन सपोज इट इज व्हाट कैपिटल एम, ये हो रहा है 1/10। सो ये चेंज नहीं हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं हो रहा उन दोनों के बीच में, ओके राइट ना? तो ग्रेविटेशन फोर्स इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। Now talk about small g value. Now small g value, it depends on the mass of the planet, universal gravitation constant, radius of the planet. So universal gravitation constant, it is increasing 10 times, right now. So g ka value again it will increase by 10 times. So what should be the answer, Dhanashri? डी। D, right? वहां पे लिखा not correct. हाँ So not corrected is what g, it will not change, it is what not correct, okay? G will change. See, g का value increase हो रहा है तो obviously raindrops will fall faster, walking on the ground would be more difficult because gravity ज़्यादा रहेगा उसमें, right ना? Time period of the simple pendulum on the earth would decrease because time period it is inversely proportional to g. If g value root of g, if g value increases, so time period will decrease obviously. So option D आएगा. D option is correct. Okay? अदिति ने भी D option बताया था पहले. Aditi, which option? sir. D, sir. Okay. 82. Kepler's third law states that the square of the time period of the planet around the sun is proportional to the third power of average distance. Okay. So here k it is what constant. If the masses of sun and the planet are r and m respectively, then as per the Newton's law of gravitation force between them is then the relation between g and k is described as, okay. So you find the relation between g and k. Very simple, na? T it is equal to 1 upon 2 pi under root of r cube divided by gm, okay. So if you take square, t square it is equal to 1 upon 4 pi square और ये रूट कट हो जाएगा r cube divided by gm. So ये वैल्यू 1 upon 4 pi square gm को क्या कंसिडर किया है, k, okay. So what is the value of relation between g and k then? GMK should be equal to 1 बी आएगा। upon 4 pi square ना? जीएम के इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आएगा। कैसे? ये 2 पाई है क्या 1 upon 2 पाई होता है? T is equal to क्या होता है? 2 पाई 2 होता पाई है, होगा ना सर, 2 पाई, हाँ 2 पाई होता है तो ये 4 पाई स्क्वायर ऊपर आ जाता है, 4 पाई स्क्वायर, so 4 pi square, तो GMK will be equal to 4 pi square, okay. Option B, Yeah. option B, okay. आगे सबको? हम्म 83.
A planet of mass m moves in an elliptical orbit around an unknown star of mass m, such that its maximum and minimum distance from the star are equal to r1 and r2 respectively. The angular momentum means capital L of the planet relative to the center of the star is. सर कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ? हाँ 83 चल 81 छोड़ दिया आपने? 81 छोड़ दिया, कर तो दिया 81 किया भाई किया, किया 83 करना है, 83 करो. देखो प्लैनेट्स जब भी मूव करता है तो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. ओके, सो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना आता है? 0. तो क्वेश्चन में चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पूछा है या एंगुलर मोमेंटम पूछा है सर? ओनली सिर्फ एंगुलर मोमेंटम पूछा. सिर्फ एंगुलर मोमेंटम पूछा तो 0 नहीं आएगा, राइट? इफ सपोज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज आस्क्ड तो तभी 0 आएगा. ठीक है, तो इसका मतलब 0 आपके ऑप्शन में नहीं है, 0 आंसर नहीं है आपका. ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? L it is equal to mvr. सो देखो mvr. ओके, सो abc इसमें है mv. ओके, mvr के टर्म्स में करना है इसको. वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा, रेडियस फाइंड करना पड़ेगा. सो दो रेडियस दिया है ना, सच दैट इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंसेस फ्रॉम द स्टार आर इक्वल टू. ओके, सो अ प्लैनेट ऑफ मास स्मॉल m. So this is suppose a planet of mass small m moves in an elliptical orbit around an unknown star. So suppose this is what a star जिसका mass है capital M, such that its maximum and minimum distances from the star are equal to r1 and r2. तो ये उसका minimum distance हो गया r2, ये उसका maximum distance हो गया is what r1. The angular momentum of the planet relative to the center of the star is. The angular momentum of a planet relative to the center of the star is. So angular momentum चाहिए L. So suppose L it is equal to m v1 r1. Suppose first case consider करते हैं. Okay. So आपको velocity चाहिए. अभी velocity कैसे मिलेगा इसमें? Velocity law of conservation of angular momentum के हिसाब से angular momentum remain constant. मतलब L1 it is equal to L2. मतलब m v1 r1 it is equal to m v2 r2. Okay. So mm will get cancel. So v2 का वैल्यू क्या रहेगा? v2 वैल्यू will be equal to v1 r1 डिवाइडेड बाय r2. तो आपको v1 और v2 के बीच में रिलेशन मिल गया. okay, v1 और v2 के बीच में रिलेशन मिल गया. Now if suppose the planet it is revolving around a star, the total energy will remain constant. So according to law of conservation of energy, total energy again will remain constant. So total energy first case will be equal to total energy second case. टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट? सो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? हाफ m v1 स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव होता है, तो माइनस g mm डिवाइडेड बाय स्मॉल r 1. ओके, इट विल बी इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर
minus GMM divided by R2. So इसमें से you get the value of V1 because आपको चाहिए V1. Okay. ABCD ऑप्शन में देखो, ABCD ऑप्शन में B तो आपका ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आपका ऑप्शन रह सकता है A, C और D। आवाज ब्रेक हो रहा ABCD ऑप्शन में, ABCD ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन नहीं है? B ऑप्शन नहीं है। आपका ऑप्शन हो सकता है A, C या D। तो उसमें A, C, D में क्या है आपके पास में? सर M थोड़ा है। आराम से जाओ, आपका लैग हो रहा है। आवाज कट रहा है। A, C, D में M है, राइट। तो आपको M को कुछ नहीं करना है। R1 भी है, A, C और D में R1 भी है, तो R1 को भी कुछ नहीं करना है। V1 नहीं है, so what we need is to get the value of V1, okay? So V1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये सब हम कर रहे हैं V1। राइट, तो ये सब क्या कर रहे हैं हम लोग? V1 का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो V1 का वैल्यू कैलकुलेट करो इसके हिसाब से। So in this case, what we can write V2 value. सुनाई दे रहा है सबको? सुनाई दे रहा है सबको? हेलो। हाँ अमन, सुनाई दे रहा है? हाँ सर, बीच क्रैक बहुत हो रहा है। यार ये नेट बहुत स्लो चल रहा है। देखो नोटबुक भी कितना ब्लर दिख रहा है। अमन सुनाई दे रहा है? हाँ सर। ओके, ये इतना नोट कर लिया कि आपने? सॉल्व करो ना इसे फटाफट। मेरी आवाज लैग हो रही है, आप खुद सॉल्व कीजिए इसको। यहाँ पे V2 के जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, V1 R1 divided by R2. So half into M into, so V1 square R1 square divided by R2 square. Get the value of V1. So what we have is half M V1 square minus GMM divided by R1. It is equal to half M V2 square minus half M V2 square minus GMM divided by R2. So this will be half M V1 square. ये वाला टर्म सपोज इस तरफ आ गया तो it will be minus half M V2 स्क्वायर का वैल्यू क्या है अपना? V1 स्क्वायर R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। इट इज इक्वल टू, ये टर्म यहाँ आ गया तो दिस विल बी पॉजिटिव, GMM डिवाइडेड बाय R1 माइनस GMM डिवाइडेड बाय R2. So what term I can take outside? Half M V1 स्क्वायर, क्या बचेगा? 1 माइनस R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। यहाँ पे GMM divided by nothing, 1 divided by R1 minus 1 divided by R2. Okay, so this will be mm value will get cancelled. Okay, so half into V1 square multiplied by R2 square minus R1 square divided by R2 square.
will be equal to gm into r2 minus r1 divided by r1 into r2. So one of the r2 value will get cancelled. What is the value of v1 then? v1 value will be equal to under root of 2gm into r2 minus r1 divided by r2 square minus r1 square. Now a square minus b square वाले फॉर्मूले के हिसाब से a square minus b square वाले फॉर्मूले के हिसाब से it will be a plus b a minus b. So this will be under root of 2gm divided by r2 plus r1. Okay. So ये आ गया आपका v1 का वैल्यू. Now what is the value of L? सर आपने R1 नहीं लिखा, वो एक R1 R2 में R2 कट हुआ तो R1 किधर गया? R1 भी है, right? हाँ. So R1 it will be there in the denominator. So this will be R1. So this is what R1. So M1 MV1 R1. Okay. So ये आ गया आपका L1 M V1 का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2GM डिवाइडेड बाय R2 plus R1 into R1 multiplied by R1. तो जब भी R1 अंदर जाएगा R1 स्क्वायर बन जाएगा, राइट? तो वन ऑफ द R will get cancelled. So it will be M into under root of 2GM R1 divided by R2 plus R1. ऑप्शन ए. बट एक R2 में से R2 कहाँ चला गया? एक ये R2 है ना यहाँ पे, ये R2 है यहाँ पे, ये हाँ R2 सर. यहाँ जाएगा. Yes. So this R2 will be here. This is what R2. This is R2. So this is R2. So option A, right? आगे सबको ऑप्शन है. हाँ. लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, क्या करना है? A remote sensing satellite of Earth revolves in a circular orbit at height h above the surface of the Earth. If the Earth's radius is given, g value is given, then orbital speed of the satellite is. Orbital speed मतलब vc. Okay, vc का वैल्यू कैलकुलेट करो. वो हो गया था 83 सबका. हाँ. ओके. vc it is equal to under root of gm divided by r plus h. Okay, gm is equal to gr square. So this will be under root of g r plus h. ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है? तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करो. एट पॉइंट समथिंग आएगा. का 8 पॉइंट समथिंग आएगा. मतलब 8 के आसपास आ रहा. तो ये हो गया, ऐड कितना आ रहा है?
6.36. 6.36 6.63. 6.63 आएगा ना? 6.63 into 10 raised to into 10 raised to power 6, right? So ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9.8 इंटू 6.63 इंटू 10 रेस्ट पावर 3 बाहर आ गया, तो ये किलो में कन्वर्ट हो गया, जो एबीसीडी में किलोमीटर में है, राइट? अभी आपको 9.8 और 6.63 का देखना है मल्टीप्लिकेशन कितना आता है। तो ये हो जाएगा 64.97, ओके। तो 64 मतलब 8 पॉइंट में आएगा आंसर। हाँ 8 पॉइंट से ज्यादा आएगा, राइट? सर तो ऑप्शन सी। डाउट था, 0.06. बोलिए। G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर ना, तो वो R मतलब हमेशा रेडियस ऑफ अर्थ रहेगा कि हम लोग उसको R प्लस एच भी एज्यूम कर सकते हैं? आर प्लस एच आपने भी एज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि वो मेरे को लगा कि वो प्लेनेट का है ना, तो फिर मतलब नहीं नहीं, हाँ वेट अ मिनट। जब भी इसको R प्लस एच लिखते हैं ना, तो ये G नहीं होता, ये GH हो जाता है, ओके। वो हो जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h नहीं है, ओके। वो है GH वैल्यू। तो वहां पे 9.8 लेना पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes. ऑप्शन ए है, ए या बी में से ही रहेगा, ए या बी। क्या है ऑप्शन अमन? 6 भी दिया है। बी। हाँ क्यों ए और बी क्यों बोला मैंने आपको? अर्थ है ना, तो वीसी का वैल्यू मैंने क्या बताया था आपको अर्थ के लिए? 7.11 ना? 7.11 7.92. 7.9 हाँ सॉरी सॉरी, 11.2 था ना दूसरा वाला, इसके 11.2 वीई का वैल्यू, तूने दोनों को मिक्स कर दिया। चलो 7.92, ओके। सो ये कभी है व्हेन सैटेलाइट रिवॉल्व वेरी क्लोज, ओके। सैटेलाइट रिवॉल्व वेरी क्लोज मतलब वी सी इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जीएम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, राइट? तो एच का वैल्यू अगर आप निग्लेक्ट करोगे तो अंडर रूट ऑफ जीएम डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू होता है 7.92, ओके। तो जब भी आप एच का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे प्लस एच, जब भी आप सब्स्टिट्यूट करोगे जीएम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, तो जब भी एच का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो 7.92 से वैल्यू कम होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो वो कम वैल्यू तो ए और बी ऑप्शन में ही है, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सो देखा जाए तो h का वैल्यू इट इज लेसर देन द वैल्यू ऑफ r, मतलब और मोर ओवर इट इज प्रेजेंट इन द रूट, राइट? सो वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा द वैल्यू ऑफ bc को, ठीक है? तो 7.92 के नजदीक ही आंसर आना चाहिए, तो 7.76 किलोमीटर पर सेकेंड ऑप्शन बी ही करेक्ट लग रहा है, सर, ठीक है? मतलब जो मैंने बोला वो सही है ना, वो ऊपर वाला? हाँ, ये g इंटू आर प्लस एच नहीं होना चाहिए, ये जी एच इंटू आर प्लस एच होना, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। समझ में आ रहा है? अगर हम लोग जी लेते तो जी आर स्क्वायर लेना पड़ता। gm it is equal to gr square, right? हाँ And gm it is again it is equal to gh into r plus h the whole square, right? ऐसा ऐसा लिखना, ऐसा याद रखना, ओके। ठीक है? तो इसको सॉल्व कैसे करें? मतलब रूट है, देन स्क्वायर वाले टर्म्स हैं, आप अप्रोक्सीमेशन ही याद रखो इसमें। h इज वेरी वेरी लेस ना, मतलब 0.25 into 10 raised to power minus 6 है, so it will be very close to the it is very close to the surface of the planet, right? Yes or no? So that's why it is 7.92 के नजदीक रहेगा आंसर, ऐसे याद रखो, ओके? 7.76।
समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ Yes, sir. देखो हम r का वैल्यू हमेशा क्या लेते हैं, 64 लेते हैं ना, 6.4 इंटू 10⁻6 किलोमीटर, और यहाँ r का वैल्यू कितना दिया है, 6.38। तो 6.38 को अगर हम लोग ऐड करेंगे 0.25 से, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, 6.4 के नजदीक ही रहता है। और मोर ओवर इट इज प्रेजेंट इन द स्क्वायर रूट। ओके, तो स्क्वायर रूट में वो इफेक्ट भी ये थोड़ा सा और कम हो जाता है। सो इट विल बी नियरर टू 7.92 किलोमीटर पर सेकंड ऐसे ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो 85। Mass m is divided into two parts, xm and 1 minus x into m. For a given separation, the value of xm, for which the acceleration due to gravity between the two pieces becomes maximum, is yes, half, कितना आ रहा आंसर इसका? सर वो x मतलब वो x m में आएगा ना, वो x के नीचे m कैसे आएगा? x सफिक्स m, या फिर x ही समझ लो, m मत समझो उसको, ठीक है? m मत पकड़ो, x सिर्फ अकेला x, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द टू पीसेस becomes maximum is, okay, so the value of x, मतलब x का वैल्यू क्या रहना चाहिए, हाफ होना चाहिए। तो दो प्लैनेट बनेगा, एक बनेगा हाफ एम, दूसरा बनेगा हाफ एम, या 3/5 होना चाहिए। तो 3/5 बना, तो इसका मतलब एक बना 3/5 m और दूसरा बना 2/5 m, राइट ना? या रहना चाहिए 1 बना, तो एक वो डिवाइड ही नहीं हुआ, राइट ना? तो मतलब एक है m, दूसरा है 0। 2 तो ऑप्शन में आएगा ही नहीं, क्योंकि 2 मतलब नेगेटिव। अगर कोई एक मास m है तो उसका डबल मास हम लोग उससे क्रिएट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो सी और डी तो इनवैलिड ऑप्शन है। तो ए और बी बताओ, ए और बी में से क्या ऑप्शन करेक्ट है? ए आर कैसे कैसे? सर, वो ऊपर 1 - x इंटू m और इनको याद रखो कि एक बड़ा प्लैनेट और एक छोटा प्लैनेट जब भी आता है, ओके, तो उन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीक रहती है कंपेयर टू द प्लैनेट्स विच आर हैविंग द सेम मासेस, ठीक है ना? तो जब भी दो प्लैनेट्स का जब भी सेम मास रहता है तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ज्यादा रहता है कंपेयर टू द अनदर केस। समझ में आ रहा है कि नहीं? Gravitational attraction between the two pieces becomes maximum when exactly they are of same mass. तो half m and half m, okay, half m and half m जब भी रहेगा तो सेम रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, ओके। सर लेकिन हम लोग अगर मल्टीप्लाई करने जाए ना तो फिर वो 3/5 का ज्यादा आता है मास का मल्टीप्लिकेशन, तो 25 आएगा, और जो फर्स्ट केस में उसमें 1/25 आएगा। तो अगर जी बड़ा है तो प्रोडक्ट ऑफ मासेस 6 डिवाइडेड बाय 25 बड़ा है या 1/4 बड़ा है?
6 divided by 25 जो है वो 0.24 आता है, ओके, and 1 हाँ divided by 4 0.25 आता है, 0.25. so 1 by 4 is greater, right? ओके समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ Uh, हाँ सर या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो ना, if it is वो डिफरेंशिएशन चैप्टर वाला मैक्सिमा वैल्यू फाइंड करने का फंक्शन इट इज, हाँ वो अच्छा है सो if it is directly proportional to m1 m2 ना, सो एक हो गया xm, दूसरा क्या हो गया 1 minus x into m, सो ये हो जाएगा x into 1 minus x into m square if it is directly proportional to this. So distance से differentiate करेंगे, so the differentiation of this with respect to x, it should be 0. You have to equate it with 0 such that the function will be maximum, the force will be maximum, right now. तो डेरिवेटिव देखो एंड गेट की कभी ये करेक्ट 1/2 आ रहा है एक्स का आगे बढ़, सो ये तो एक x हो गया माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, राइट, ऐसा. सो डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, राइट. यस देखो एक क्या आ रहा है, एक आ रहा है आपका 1 m minus स्क्वायर x 2x माइनस m स्क्वायर x स्क्वायर, राइट. ये आ रहा है, ये f का वैल्यू, f it is directly proportional to this, so what df divided by dx will be equal to, suppose it will be m square minus 2m x, 2m square x, right, and this should be equal to 0 in order to get force maximum. So this will be m square will be equal to 2m square x. So m square cancel, x will be equal to r. Right now. So let us end this section, है ना? बहुत हाँ सर, इंटरनेट लैग हो रहा है. हाँ बराबर. Okay. कौन कौन भगवान ने सुन लिया हमारी बात चलो अभी नेट चल रहा है तो 5 मिनट भी बाकी है, 86 एक कर लेता है. ठीक है ठीक है. रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन, अच्छा इजी है लगता है इसलिए तुम लोग ने आवाज दी सब. ठीक है. नहीं सर आपने बोला इसलिए नहीं आपने बोला ना. 5 मिनट है इसलिए. चलो ठीक है. 86 द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g1 divided by g2 on the surface of the two planets, okay, so g1 divided by g2 it is equal to pi by 2, and the ratio of their average density is rho1 divided by rho2, it is 2 by 1. The ratio of respective escape velocities, so v1 divided by v2 चाहिए, so v it is equal to under root of 2 gm divided by r, right now, which is nothing but अभी डेंसिटी से टर्म्स में चाहिए ना, तो g into 4 by 3 pi r cube into rho divided by r, तो एक r कैंसिल, r स्क्वायर हो जाएगा, राइट. So this is under root of 8 by 3 pi g rho r square, okay. तो g को कैपिटल g को स्मॉल g की टर्म्स लिखना, तो gm it is equal to gr square, right. So what g will equal to g r square divided by capital M. So it will be under root of 8 by 3 pi g r raised to 4 divided by capital M into rho, okay. So what v1 divided by v2 it will be equal to r1 square divided by r2 square multiplied by under root of rho1 divided by rho2. So r1 चालू 86 6. 25 divided by 4 under root of root 2.
ऑप्शन आ रहा सी सी रहेगा क्या? सी आ रहा है कौन सा फॉर्मूला यूज किया? सर। आपने जितने सॉल्व किया उसके आगे किस सर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 4 को 2 into 2 लिख 2 सकते हैं, तो into 2 2 लिख को सकते हैं ना 4 2 को, रूट 2 फिर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 रूट 2 हाँ बचेगा। 2 √2 बचता है। एक मिनट, तुम लोग बोल रहे हो कि मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय √2 और मल्टीप्लाइड बाय √2 कर दूं। चलो ये 2 हो गया, सो ये 2 हो गया। ओके, हाँ। सो ठीक है, ये भी 25 चलेगा। is to 2 √2 हम्म इधर है ऑप्शन, है ना, सी में है ना। अच्छा 5, हाँ तो 5 इसको है भी वो। रूट भूल गए रहेंगे हम लोग। ये G1 डिवाइडेड बाय G2 दिया है, R1 डिवाइडेड बाय R2 नहीं दिया है। क्या करते हैं? रेडियस का रिलेशन नहीं है हमारे पास में, तो 5/2 तो ये G1 डिवाइडेड बाय रहेगा ना। G2 है। G1 डिवाइडेड बाय G2 है, तो G1 डिवाइडेड बाय G2 मतलब 5 डिवाइडेड 5/2 इनटू अंडर रूट ऑफ 2 ऐसा। हम्म तो नहीं, नीचे आएगा √2। तो नीचे आएगा। नीचे आएगा हाँ क्यों? डेंसिटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। सर, v के साथ है ना, v के साथ तो इनवर्सली है। v कैसे के साथ इनवर्सली रहेगा। कैसे? डायरेक्ट है ना। अरे एक लास्ट का सम है और तुम लोग ऐसे कर रहे हो। सर वो मैं बीच में सो गया था गलती से। कौन सा हो गया था? वाह। हाँ, वो 2 क्वेश्चन सो गया था मैं। ये देखो, V इट इज इक्वल टू 2GM डिवाइडेड बाय R, बराबर। हाँ हाँ 1 डिवाइडेड बाय G2 दिया है आपको 5/2, तो 1 डिवाइडेड बाय √2 दिया है आपको 2/1, सो दिस विल बी रूट ऑफ 2 कैपिटल G। कैपिटल M को डेंसिटी के टर्म्स में लिखो, 4/3 पाई R क्यूब मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी डिवाइडेड बाय R। ओके, तो ये क्या बन गया? अंडर रूट ऑफ 2G, this will be 8 pi divided by 3 R square, okay, into rho। ठीक है, now we have to write GM it is equal to G R square। okay, तो क्या रहेगा? अंडर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 3 पाई G का वैल्यू क्या रहेगा? G R⁴ डिवाइडेड बाय M into rho। okay, so VE it is directly proportional to G and rho ना, yes or no? ओके, दोनों रूट में। So V1 divided by V2 will be equal to under root of G1 divided by G2 into rho1 divided by rho2. So this will be 5/2 into 2/1. So root of 5. √5:1। ये तो गलत है ना, गलत आंसर है। सर अरे वो हाँ, नीचे वाले m को भी डेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट करना चाहिए ना। वो जो डिनोमिनेटर में m है उसको भी डेंसिटी के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। करना तो चाहिए क्योंकि उसमें भी डेंसिटी है, राइट? सर फिर तो रो कैंसिल हो जाएगा। फिर बी ऑप्शन आ रहा है। बट रो एंड रो कैंसिल हो जाएगा ना। तो सिर्फ g से रिलेशन बचेगा, तो √5 to √2 आ रहा है। सर पीछे तो आंसर सी दिया है। देखो, डेंसिटी टर्म will remain constant, right? So yes can we get the relation with respect to radius? यस सर, रेडियस से निकाल सकते हैं, और जो ड्यू टू Density ग्रेविटी ना उससे रेडियस का रिलेशन मिल जाएगा सर। तो GM, ओके, M के जगह पे देखो GM इट इज इक्वल टू GR स्क्वायर, तो G इंटू what M it is equal to 4/3 pi R cube, okay, into rho it is equal to GR square।
So one of the r will get cancelled. एक ही r बचेगा. So what g1 divided by g2 will be equal to g 4/3 pi cancel हो जाएगा. r1 divided by r2, rho1 divided by rho2. Okay. So g1 divided by g2 दिया 5/2. It is equal to r1 divided by r2. Rho1 divided by rho2 at 2:1. So yes, all of you. आगे सब लोग. यस यस सर. सॉरी बहुत लैग. हम तो इधर ही है सर. हाँ हम तो इधर ही हैं. हम इधर आप उधर. जा जाके आ रहे हो. ओके. सो r1 और r2 के बीच में रिलेशन मिल गया अभी हमें. ठीक है. अभी what we need is escape velocity ratio. तो डेंसिटी कंसीडर नहीं करेंगे. VE is equal to under root of 2gm divided by r. So V under root of 2 gr square r हो गया. Okay. So V1 divided by V2 will be equal to under root of g1 divided by g2 into r1 divided by r2. So this will be under root of g1 divided by g2 क्या है अपना 5/2. r1 divided by r2 है अपना 5/4. So हो जाएगा 5 divided by 2√2. ठीक है. ऑप्शन सी. एक सेकेंड. सर आर का रिलेशन कैसे मिल. अच्छा यहाँ से ले. ओके समझा. तो आज बहुत सी आया सर. इंटरनेट बहुत ज्यादा लैग हो गया तो इसके लिए आई एम रियली वेरी मच सॉरी. यस सर. सर उसका आंसर सी आ रहा है. हाँ सी आ गया ना. हमारा भी आ गया. अच्छा मैं ये किया था हेडफोन निकाला था. सॉरी. Okay. चलो फिर बाय बाय ऑल ऑफ यू. टेक केयर. sayonara टाटा. बाय सर. रबरा का अटेंडेंस. ले लिया. हाँ सर आज कोई नहीं आया शायद. आज नहीं है. मैंने ले लिया अटेंडेंस. चलो ओके. ओके बाय सर. सायोनारा.